Okay, so again, Assalamu alaikum and good morning to one and all. Here we are going to start with the new chapter that is network layer, and it is the fourth chapter of the subject. Okay, in network layer, we had cleared few things regarding the network layer that it is responsible for the delivery of packet from source to the destination. In the same way, we also saw that your data link layer, okay, the previous layer, the layer third layer, okay, starting from the bottom, physical layer, data link layer, and then network layer. आपका physical layer, then data link layer, उसके बाद में network layer. So your data link layer was responsible for the delivery of packet from one hoop to the next hoop या one node to the next node. Okay. So एक node के बाद जो node आती है उस node तक ले जाने के लिए your data link layer was responsible. Okay. And we also saw that your network layer is responsible for the delivery of packet from their source to the destination. Start to end पूरे के लिए responsible है. And your network layer has a lot of tasks like it has the routing protocols. Okay, it has routing protocols also, so that it can route the उसको हालांकि route नहीं बोलना चाहिए बल्कि route बोलना चाहिए, that's a correct pronunciation, but वो routing से routing protocol routing कुछ कुछ लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, सो हमारे लिए उतना कुछ मैटर नहीं करता है, समझना इंपॉर्टेंट है. Okay, so routing protocol or routing protocol. So with the help of these protocol, the packets are getting proper path, okay, from source to the destination, because I told you that in the whole internet, okay, we have the whole world, okay, we have the whole internet. So in the complete internet we are having a lot of networks, okay, millions of lines are there. Okay, so how they are going from one node to next node, उसके बाजू वाली नोड में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, so that all is going to decide by the routing protocol. ये आवाज कुछ ये आवाज कहाँ से आ रही थी? Was it from my side? ओमकार सलवा नहीं ना? हेलो. No, sir, we didn't hear anything. At least I didn't hear any. हाँ, बिकॉज यहाँ तो कुछ भी नहीं है. चलो कोई बात नहीं. सो so as far as the network layer is responsible, it is going to uh, it is going to transfer, it is going to do the help, it is going to provide the help or deliver the packet from host to host, okay, or we can say from source to the destination. Okay, हमारा जो data link layer में था, it was responsible for node to node, one node to next node, the next node to next node, and so on. Okay, let us see with the help of one example, because example is treated over here. So this is our source, okay, and this is my destination. Okay, this is source and this is destination, and you know that between all of these, between the source and the destination, we are having a big network with us. Okay, हमारे पास में एक बहुत बड़ा एक www है. Okay, in that we are having lot of routers, we have lot of machines. Okay, we have the network. Okay, बीच में आपको बहुत सारे मिलेंगे. So we have all these network, you can say all these routers or nodes which are in between of you. Okay, and what you required now. Okay, and they all are connected basically. Okay, so this connected to this. Okay, and this is connected to this, and this यहाँ से connected. I just want to show you that it may go via different path. Okay, so multiple paths are there. Okay, ये भी path available है. ये भी, so all are connected because this is the www. This is the you know पब्लिक डोमेन. सो पब्लिक डोमेन के अंदर ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तभी जाके तो हमको इंटरनेट मिलता है. ओके, तो ये एक छोटा सा सिनेरियो हम लोग लेते हैं, इसको सेव करेंगे एंड आफ्टर दैट विल यूज इट आल्सो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको राउटिंग प्रोटोकॉल समझने के लिए. ओके, तो चलो कुछ ऐसा हो गया, एंड दिस कनेक्टेड टू दिस वन. ये भी आपके
destination connected. It is also connected to your destination. It is also connected to your destination. These two machines are also connected to your source. Okay, so now you can imagine this network. ये आपका www है. Okay, in this scenario, okay, what is possible, the things which are possible over here, this is my source and this is my destination. Okay, in this scenario, what the thing is possible, your packet, if your packet is starting from this, that is source, so it may take इस पाथ. ओके, इट में टेक ये वाला पाथ. ओके, तो उसके पास में बहुत सारे पाथ हैं. ठीक है, टू डिसाइड विच पाथ इज एक्यूरेट, विच पाथ इज एफिशिएंट, विच पाथ इज लेस टाइम जिसके अंदर लगने वाला है, लेस कॉस्टिंग लगने वाली है. सो फॉर दैट वी हैव राउटिंग प्रोटोकॉल्स. ओके, those routing protocols are going to decide that which path they have to take. ओके, अब वो राउटिंग प्रोटोकॉल अपने 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 तरीके से काम करते हैं. ओके, ये हमको बाद में भी लगेगा, इसको हम लोग सेव करते हैं. सो स्टार्टिंग विद द नेटवर्क लेयर. अभी हम लोग ने ऑफिशियली स्टार्ट नहीं किए. लेट स्टार्ट विद द नेटवर्क लेयर. So from if we consider the OSI reference model from the bottom, then this is the third layer. Okay, this is the third layer, that is network layer, and it is responsible for the host to host delivery, or we can see from source to the destination on the delivery. Okay, it provides services to the transport layer and receives services from the data link layer. So obviously it depends on the source and the destination, on which side you are. Okay, if you are at the if you are at the source side, then absolutely you are taking the services from the network, from the upper layer. अब आपके network के ऊपर कौन है? Transport layer है. So it is going to receive the services from the transport layer and going to provide the services to the data link layer. इफ यू आर एट द डेस्टिनेशन साइट, बिकॉज हम लोग हमेशा डेस्टिनेशन साइट कंसिडर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर उसने बताया कि इट इज गोइंग टू टेक द सर्विसेज फ्रॉम द data link layer and going to provide the services to the transport layer. Okay, so vice versa. There are some services. Okay, also we have seen, I think of 4 or 5 services in the data link layer. Okay, our data link layer used to provide few services like framing, देन उसके बाद में क्या क्या था, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल. ओके, ये सारी अपने और भी इसमें थी, इतना ध्यान. So also for the network layer we have this list of services. As you can see, around 3 or 3 6 7 8 total 8 services are there which is provided by the network layer. Okay, almost उसमें कुछ थोड़ा बहुत difference रहता है, because layer to layer the things get changed. Okay, your network layer is mainly focusing on the आपका थोड़ा सा राउटिंग पे, फॉरवर्डिंग पे, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल है, लेकिन मेनली वहाँ पर हो रहा है. और फिर कंजेशन कंट्रोल is the biggest service which is providing by the which is being provided by the network layer. Okay, so these are the services, like starting with the packetizing. Okay, so packetizing में basically आपका वहाँ पर framing होता है, तो यहाँ पर packetizing होता है. So we have a packetizing, then we have a routing. Okay, or routing. Okay, and after that we have a forwarding. Okay, routing and forwarding are two different things. Then उसके बाद में we have error control. Then उसके बाद में we have flow control. These are the two common ones. And then common मतलब के in which we have seen in the data link layer. Then we have congestion control. Congestion control, I told you in the beginning, I think when we were starting the data link layer chapter, at that time I told you that there was a topic congestion control. In this congestion control, when the packet, when packet travels or when the data travels from the medium. Okay, then what happens? When at any point of medium, any point at any place, when more number of packets are accumulated, when more and more number of packets are accumulated, and they become, the situation is like they can't go beyond that particular point. Okay, so if any fresh packet is coming from one side, so the crowd is in such a way that it cannot pass that particular traffic. तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, उसको हम लोग कंजेशन बोलते हैं. और उस कंजेशन को हैंडल करने के लिए वी हैव टू स्ट्रैटेजीज. वन इज ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल एंड सेकंड इज क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल. ओके, दैट विल सी इन दिस टॉपिक. एंड देन क्वालिटी ऑफ सर्विस. अगेन क्वालिटी ऑफ सर्विस की तो अब तक कोई बात ही नहीं कर रहा था, बट क्वालिटी ऑफ सर्विस भी एक इसकी सर्विस है. एंड देन उसके बाद में सिक्योरिटी, एट लास्ट सिक्योरिटी तो है. ओके, सो ये सारी सर्विसेज है, अराउंड 8 9 सर्विसेज जितनी मुझे बुक से मिली, मैंने इसको मेंशन किया. ओके, so it is not necessary that we have to write all the services. Okay, 5 services. Yes, so 5 services, 5 to 6 services are enough. Okay, for the
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है। Starting with the first service, that is packetizing. Okay, so packetizing, it is same as your framing. In framing, what we used to do, we used to make a frame. Okay, तो यहाँ पर आपके पैकेट्स बन रहे हैं। देखो हम लोग ने जब भी बात की है, when we talk in terms of your data link layer, so whenever we were talking on the level of data link layer, so we talk in terms of frame. Okay, भाई आपका फ्रेम यहाँ से निकला, आपका फ्रेम जा रहा है, आपका फ्रेम लॉस्ट हुआ, so we talk in terms of the frame. Okay, यहाँ पर हम लोग विल टॉक इन टर्म्स ऑफ द पैकेट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपके पैकेट चलते हैं। यही पैकेट जब आपके सोर्स साइड पे, जब आपके डेटा लिंक लेयर के पास जाते हैं, तो फिर इनका फ्रेम बनता है। इनको फिर एक आपका एक बॉक्स होगा, बॉक्स में उस पैकेट को डालेंगे और उसको फ्रेम बना देंगे, ठीक है, तो वो फ्रेमिंग वहाँ पर होती है। बट उसके ऊपर ही हम लोग अभी, ठीक है, थोड़ा हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। सो अभी हम लोग फ्रेमिंग के पहले वाले स्टेज पर है, यानी कि आपके नेटवर्क लेयर पे, एंड एट द नेटवर्क लेयर योर पैकेट्स आर बीइंग क्रिएटेड। द वेरी फर्स्ट ड्यूटी, अच्छा ये रिवर्स में जा रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हो रही है, जो फंक्शंस हो रहे हैं, तो समझ लो कि उसके पहले वाले फंक्शन है, उसके बाद में फिर आपका फ्रेमिंग। जैसे हम लोग अभी इन दिस केस पहले पैकेट बनेगा, और पैकेट बनने के बाद में उसकी फ्रेमिंग होगी कहाँ पर, आपकी डेटा न्यूक्लियर पर, ठीक है। सो थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं हम लोग, उसके लिए बी अटेंटिव। So at network layer, the very first service it is providing is packetizing. Okay, the very first duty of the network layer is definitely we have to packetize the data whatever we want to send. Okay, uh, उसके बाद में encapsulating and decapsulating, you know these two terms, because encapsulation is a very common word which are used. Even we have used in the programming also. We have used the encapsulation and decapsulation. Encapsulation देखा था आपने। So here the encapsulation is like we are accumulating the data at one place। उसके अंदर फिर बोलते हैं ना कि भाई आपका जो सामान है, सामान को एक बॉक्स में रखना, बॉक्स में रख के इसको पैक करना, सेलो टेप लगाना, उसके ऊपर एक एड्रेस का चीट लगाना, और उसके ऊपर बराबर उसको हम लोग उसको पोस्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ होता है आपका पैकेटाइजिंग में। इन encapsulation the encapsulating the payload, that is data which is received from the upper layer। upper layer कौन है भाई, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर ने आपको लाके दिया है, लो भाई अब आप इसको संभालो। तो अब इसको क्या करना है, इनको ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, पहले उस डेटा को हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पेलोड, ठीक है। आपने कहीं कहीं पर किसी पैकेट फॉर्मेट में यू हैव हर्ड द नेम दैट इज पेलोड। तो पेलोड बेसिकली बिलोंग्स टू द डेटा ओनली, ओके। सो इनकैप्सुलेटिंग द पेलोड, मतलब आपका जो डेटा है, वी आर गोइंग टू इनकैप्सुलेट इट, वी आर गोइंग टू रैप इट अप, ओके। In a network layer, packets at the source and the decapsulating the payload from the network layer, packet at the destination। So obviously vice versa बता रहा है। So at the source side, the encapsulation is going to be done, and there will be decapsulation will be done। Okay, so encapsulation, decapsulation, आपका payload wrap up होगा, और यहाँ पर उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन अप करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपकी यहाँ पर encapsulation, decapsulation में तो भाई हमारा कॉमन। The network layer is doing the service of the carrier such as the postal service। ये आपको बताया मैंने, आपको आपको कुछ भेजना होता है, तो उसको हम लोग पोस्ट ऑफिस वाले या आप लोग उसको रैप अप करते हैं और भेजते हैं। सो योर नेटवर्क लेयर विल एक्ट एज अ कुरियर सर्विस, जो आपके पैकेट को, आपके डेटा को, पैकेट को नहीं, आपके आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा, which is responsible for the delivery of packages from the sender to the receiver without changing the and using the content। तो ये तो होना ही चाहिए। तो बेसिकली पैकेटाइजिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक और स्लाइड है पैकेटाइजिंग की, लेट अस सी दैट। उसके अंदर कुछ और इशू, जैसे कि आपका अगर डेटा अगर आपका बड़ा है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ बिग डेटा, देन हाउ देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ओके। देन यू आर गोइंग टू फ्रैगमेंट द डेटा प्रॉपर्ली, and for each and every fragment, okay, so you will make one packet, okay। for example आपके पास में एक आप डेटा सेंड कर रहे हो, एक वीडियो फाइल है, ओके, 100 MB की, ओके, 100 MB की एक आपकी वीडियो फाइल है, यू वांट टू सेंड दैट पर्टिकुलर डेटा। सो your 100 MB is going to send as it is? No, it is not going to send the whole 100 MB as it is, okay। what they are going to do, your network layer is responsible to fragment the data। कट 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 आपके डेटा को क्या करेगा, पीसेस में कन्वर्ट करेगा, वॉटेवर जितने पीस में करना है। और फिर हर आपका जो फ्रैगमेंट है, ईच पार्ट विल बी कॉल्ड एज अ फ्रैगमेंट। दैट फ्रैगमेंट विल बी पुट इनसाइड वन बॉक्स, उसको रैप अप करेंगे, उसको पैकेट बनाएंगे और भेजेंगे, ठीक है। तो ये आपका सोर्स होस्ट रिसीव द पेलोड adds the header that contains the source and destination address,
हेडर के अंदर आपको पता है उसके ऊपर जो हेडर लगता है उसके ऊपर सोर्स और डेस्टिनेशन, कहाँ से आया कहाँ पे जाना है, addresses and some other information and delivered the packet to the data link layer. ऊपर से नीचे आ रहा है डेटा का, तो एक एक करके the source is not allowed to change the content of the payload unless it is too large for the delivery and needs to be fragmented. If the data is small, then you have to send it as it is. Okay, you cannot, you just don't do it मतलब कि any task to that particular data or payload. Okay, कुछ नहीं करना है. If the data is quite long, if quite big, then what you have to do, you need to do the fragmentation. Okay, if the packet is fragmented, again one more thing, if the packet is fragmented, अगर the data बड़ा था 100 MB का data था, उतना साथ में नहीं जा सकता था, then what your network layer has done, your network layer has fragmented the data. Okay, so it has divided the data into a number of fragments और बाद में उसको भेजा. अच्छा, डेटा साथ में था तो कोई टेंशन नहीं था, बट डेटा जब डिवाइड हो गया और सब अलग अलग जा रहे हैं, पहले फर्स्ट पैकेट गया, सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो आपके कुछ 50 पैकेट्स बन गए, ठीक है, एक डेटा के 50 पैकेट्स बन गए, तो इमेजिन करो 50 पैकेट्स आपके जा रहे हैं, अभी 50 के 50 पैकेट वहाँ पे असेंबल भी होना है, उनको सीक्वेंस में लगाना है, देन बाद में फिर आपका नेटवर्क लेयर वापस से फिर रिसीवर साइड पे लेगा और उसको आगे फिर फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है. तो यहाँ पर जो if the packet is fragmented at the source or the router along the path, okay, the network layer is responsible for waiting until all fragments arrive. ठीक है, ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि when all the fragment will be arrive when until and unless all the fragment will arrive, then we cannot send the data because सब डेटा को क्या करना है, क्लब भी तो करना है. Reassembling them and delivering them to the upper layer protocol. तो रिसीवर साइड पे यहाँ से डेटा होके आया, आपकी फिजिकल लेयर से आया, फिर आपका डेटा लिंक लेयर, आपकी फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, उसके बाद में फिर नेटवर्क लेयर क्या करेगा, उसको जमा करके फिर अपर लेयर को फॉरवर्ड करेगा. तो बेसिकली ये दो स्लाइड का जो समरी है वो ये है, पैकेटाइजिंग इज वन ऑफ द सर्विस ऑफ द नेटवर्क लेयर and the task of this packetizing is to wrap up the things into one packet and send it to the receiver. Okay, and the destination को भेजना है. If your data is too long, then it has to be fragmented. If you are doing the fragmentation, then you need to make sure that all the packet assemble. We have to reassemble all the packets at the destination side also. ठीक है, दो तीन पॉइंट आपको पैकेटाइजिंग के बारे में याद रखना है. Very first service of the network layer. Okay. Coming to the second service, that is routing or routing. Okay, so routing तो आपको पता है, routing your network layer is responsible for routing the packets from its source to the destination. या नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है आपके पैकेट्स को रूट बताने के लिए, ठीक है, बिकॉज आपके जो अल्गोरिथम्स है, आपके जो प्रोटोकॉल्स है, दे ऑल द प्रोटोकॉल्स आर वर्किंग एट द नेटवर्क लेयर. ओके, सो इफ दीज टू प्रोटोकॉल्स आर वर्किंग एट द नेटवर्क लेयर, देन आपका नेटवर्क लेयर आपको बताएगा ना फिर कि भाई देखो ये पैकेट को ये वाले रास्ते से भेजो, कौन से रास्ते से, देखो ये वाला रास्ता सेफ है, ये वाले रास्ते से भेजो, ऐसा भेजो, ऐसा भेजो, ऐसा 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 भेजो, तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है. ठीक है, भले ही हमको यहाँ पर दिखने में थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा हो, लेकिन वहाँ पे हो सकता है उसकी जो कॉस्टिंग होगी, उसका जो डिस्टेंस होगा वो कम से कम होगा. ठीक है, आई गिव यू द एग्जांपल आल्सो दैट गोइंग टू द मुंबई CST. ओके, वी हैव मल्टीपल रूट्स, हम लोग ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, रोड से जा सकते हैं, और फिर आप चॉपर भी मंगवा सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास में रास्ते हैं, कौन सा आपका रास्ता सस्ता है, सुंदर है और टिकाऊ है. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मेरे हिसाब से मैं कंसिडर करूँगा और उसके बाद में फिर मैं जाऊँगा. ठीक है, सो जो लीस्ट कॉस्ट जिसके अंदर होगा, जिसमें कम से कम टाइम लगेगा, ऐसा रास्ता मैं चुनूंगा. ओके, फ्रॉम गोइंग टू द सोर्स टू द डेस्टिनेशन. तो द सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर आल्सो. द फिजिकल नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड्स वैन्स एंड मैन, जो भी होगा बीच में, बिकॉज वो देखो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो दो आपके है, फॉर एग्जांपल चलो ये आपका एक क्या है, ये आपका एक लैन है. ठीक है, ये आपका एक लैन है और फिर ये एक लैन है आपका. ठीक है, फिर ये एक लैन है, तो ऐसे मल्टीपल है. तो हमने खाली बस 4 5 6 7 हमने नोट्स दिखाए. द होल अगर कंसिडर करेंगे हम लोग, यहाँ से मैं, ये मेरा सोर्स है एंड माई डेस्टिनेशन इज इन VT. ओके, माई डेस्टिनेशन इज इन VT. तो आप सोच लो कि मैं, मेरे बीच में कितने सारे राउटर पढ़ने वाले, बीच में कितने सारे नोड पढ़ने वाले, बीच में कितने सारे लैंस पढ़ने वाले, बीच में कितने सारे मैन्स पढ़ने वाले. तो इतने सारे नेटवर्क्स को
पास करके मुझे जाना है, ओके, जब इतने सारे नेटवर्क को पास करके मुझे जाना है, देन आई नीड टू गो फ्रॉम द प्रॉपर पाथ, ओके, ऐसे पाथ से जाऊंगा जो कि मुझे जल्दी मेरे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, ओके, and this means that there is more than one route from the source to the destination. Actually मैंने इसको एकदम explanation अच्छे से मैंने किया हूँ, और ताकि इसको जब हम लोग रीड करेंगे एग्जाम के टाइम पे तो कुछ समझने में दिक्कत ना हो, ओके। So we have a source and we have a destination. So we have more than one route. Okay, as you can see in the diagram that we have one route, second route, third route, fourth route, five, six, seven, eight. मैं अभी यहीं पर आपको अराउंड 7 to 8 रूट्स दिखा सकता हूँ इसके अंदर। इसके अंदर इतने सारे रूट्स बन सकते हैं या ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे रूट्स आर पॉसिबल फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। Okay, the network layer is responsible for finding the best one among these possible routes. Okay, so in routing, the network layer is responsible for finding the best route. Okay, the network layer needs to have some specific strategies for defining the best route using routing protocols. In this, we are having two routing protocols. Everyone, please focus. We are having two routing protocols. We have two routing algorithms. One is the distance vector routing (DVR), and the second is link state routing. Okay, so LSR. So DSR, sorry, DVR, the distance vector routing and link state routing. These two are very very important algorithm. एग्जाम में एक ना एक algorithm आ जाता है, ठीक है। सो विल लर्न द राउटिंग algorithms, इसके आगे वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर आपको इंटीमेट कर दिया है, ठीक है, कि भाई राउटिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, बिकॉज सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपको कोई ना कोई रूट चूज करना है, बिकॉज आपके यहाँ पर हो आप और आपका डेस्टिनेशन बहुत दूर है, दोनों के बीच में बहुत सारे टर्मिनल्स है, बहुत सारे नोड्स है, ओके, and we may have number of lands also, we may have number of commands also, ठीक है। तो बीच में बहुत सारे लैन लैन वैन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक कोई लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके राउटर से पास होके जाना आपको या कहीं और से जाना, so we may have number of nodes which are present between the source and destination, and your network layer is responsible for finding the best route from that particular scenario, okay. So from that scenario, your network layer will find the best route using the different algorithm, and we have two algorithm. One is the distance vector routing and second is the link state routing, okay. So this is the second service आपका network layer provide करता है, okay. कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग बोले तो बस आगे पास करना, आगे फॉरवर्ड, जैसे आप लोग व्हाट्सएप के मैसेजेस क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो जो मिला आपको कहीं और से आया तो आपने इसको सेलेक्ट किया एंड देन यू फॉरवर्ड दैट पर्टिकुलर मैसेज और पोस्ट और इमेज और वीडियो और audio, whatever that post is, so you will forward that particular message to another group, okay, so just you are forwarding the things, okay। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि यहाँ कहीं से आया है उसको आगे फॉरवर्ड करना। So forwarding can be defined as the action applied by each router when a packet arrives at one of its interface, okay। कोई भी उसके पोर्ट पर जब भी कोई पैकेट आएगा, फॉर एग्जांपल राउटर है, ठीक है, तो राउटर के पास में कुछ आया तो राउटर क्या करेगा, उसको लेगा, लेने के बाद में कहीं से रिसीव करेगा और उसको फिर आगे कहीं ना कहीं पे फॉरवर्ड करना। जहाँ से आया तो आ तो गया, लेकिन कहाँ फॉरवर्ड करेगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द राउटिंग टेबल, ठीक है। उसके पास में राउटिंग टेबल होता है, वो चेक करेगा, अपने अपने रूट्स को लर्न करता है, राउटर अपने अपने रूट्स को लर्न करता है कि ये वाला रास्ता किधर जाता है, ये वाला रास्ता किधर जाता है, ये वाला रास्ता किधर जाता है। सो इट विल लर्न ऑल द रूट्स, ओके, इट विल मेंटेन द राउटिंग टेबल। उसके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, ओके। सो बेस्ड ऑन द पैकेट का एड्रेस, जब पैकेट उसके पास में आता है, then it find that what is the source IP and what is the destination। तो दोनों चेक करेगा, कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, कहाँ जाना है, ये वाला है, अच्छा नागपुर लाइन पे जाना है तो नागपुर लाइन ये वाली है, तो पैकेट को उठा के वहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा काम आपका राउटर करता है। So your forwarding can be defined as the action, whatever action your router is applying on that particular packet on receiving that particular packet from one of its interface, okay। तो पैकेट रिसीव करने के बाद में it is going to forward the packet to any other link, okay। The decision making table that I was talking about, the decision making table or the router normally user for applying this action is sometimes called the forwarding table। इसको कभी फॉरवर्डिंग टेबल भी बोलते हैं और राउटिंग टेबल भी बोलते हैं, ठीक है।
तो ये राउटिंग टेबल की मदद से, राउटिंग टेबल की हेल्प से योर router is going to decide the path for that particular packet which it has received. So when a router receives a packet from one of its attached network, it needs to forward the packet to another attached network. बात वही है, जो भी नेटवर्क, जैसे कि एग्जाम्पल आपका राउटर है, ठीक है, तो इसके पास कितने नेटवर्क, मतलब कितने नेटवर्क से अटैच है, तो एक एक ये नेटवर्क से अटैच है, एक ये नेटवर्क से अटैच है, एक ये नेटवर्क से, एक ये नेटवर्क से और ये नेटवर्क से, तो टोटल कितने नेटवर्क से अटैच है, 5 नेटवर्क से अटैच है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके राउटर ने यहाँ से पैकेट रिसीव किया, आपके नेटवर्क ने, सॉरी, आपके राउटर ने यहाँ से पैकेट रिसीव किया इस लिंक से। अब अच्छा, रिसीव करने के बाद में आपका पैकेट उसको देखेगा, देखने के बाद में चेक करेगा, चेक करने के बाद में देखेगा कि भाई सोर्स आईपी अच्छा यहाँ से आया है, डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है, अच्छा यहाँ पे जाना है, मतलब इस साइड में कहीं तो जाना है इसको, ठीक है। अब क्या करेगा वो, उसके पास में एक राउटिंग टेबल रहेगा, ठीक है, कि भाई वो क्या करेगा फिर अपने पास, अच्छा अपने पास में अगर एंट्री नहीं रहेगी ना तो अपने पास में एंट्री कर लेगा, राउटिंग टेबल ऐसा करता है। तो कहाँ से आया है, सोर्स, यहाँ से सोर्स आया, ठीक है, कहाँ जाने का है, उसका डेस्टिनेशन ये है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमारी लिंक नंबर 1 है, लिंक नंबर 2 है, लिंक नंबर, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके, ये लिंक नंबर 4 है, लिंक नंबर 5 है, टोटल 5 लिंक है, ठीक है। तो ये सोर्स है, आईपी है, कहाँ से आया भाई, यहाँ से आया, कहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं, तो आपको फॉर एग्जांपल मैं उसको कर रहा हूँ लिंक नंबर 5 पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपने पास एंट्री कर ली। व्हेन आई विल रिसीव अ पैकेट कमिंग फ्रॉम द सेम साइड, ओके, इस साइड से कोई और पैकेट आया एंड इट वांट्स टू गो टू द सेम डेस्टिनेशन जो पहले आया था, तो याद है मैंने राउटिंग टेबल में एंट्री करके रखा था कि अगर कभी ये डेस्टिनेशन पे जाना हो तो लिंक नंबर 5 पे डालना पड़ेगा, तो इसके पास में ऑलरेडी एंट्री रहती है। So with the help of that routing table, with the help of that particular entry, what your router is going to do? Your router is going to forward the packet. Your router is going to forward. Your router is going to forward that particular packet to the link number 5 because उसको पता है कि अगर नागपुर जाना है तो ये वाले हाईवे पे लगना पड़ेगा, दैट इज ऑन द हाईवे नंबर 5, ओके। सो ये हमारे पास में एंट्री करने का फायदा होता है। तो राउटिंग टेबल, दैट इज फॉरवर्डिंग टेबल, इज बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू फॉरवर्ड द पैकेट फ्रॉम, सॉरी, when your router will encounter or will receive any packet from its link, ठीक है। तो ये हमारा फॉरवर्डिंग है। टू मेक दिस डिसीजन द राउटर यूजेज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आपका जो राउटर व्हेन इट रिसीव द पैकेट उसका सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन, सॉरी, इसका सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा। तो पैकेट के हेडर में क्या रहता है, पैकेट के हेडर में डेस्टिनेशन एड्रेस और लेबल वगैरह रहेगा, तो उसके थ्रू वी कैन इजीली फाइंड आउट कि अभी इस पैकेट को कहाँ जाना है, ओके। ओके, I hope you people are getting. These are very very simple. Just the services provided by the network layer. समझ में आ रहा है आप लोग को, या मैं ऐसी बड़बड़ कर रहा हूँ खाली, कोई रिप्लाई नहीं। एक दो लोगों को समझाया बस। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। So starting with the first one, जो कि आपका packetizing था, then afterward we got the second one that is routing, and then we have third one that is forwarding. Okay, so these are the three services which is provided by the network layer. Coming to the next one that is error control. Error control और flow control से तो हम लोग एकदम familiar है, ठीक है। So आते हैं error control पे। क्या बोलते हैं error control? अच्छा, error control का तो उसके अंदर कुछ खास मैकेनिज्म हमारे पास में है नहीं यहाँ पर। वाई नॉट, क्योंकि हमारे पास में थोड़ी जो मतलब चेकिंग वगैरह होती है वो आगे उन्होंने रखा है, तो नॉमिनल चेकिंग है जो कि इनएफिशिएंट है एक्चुअली। तो इट इंश्योर दैट पैकेट ट्रैवलिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन शुड बी एरर फ्री, तो हम बोलते ही भाई साहब ये एरर फ्री होना चाहिए। ऑल्दो एरर कंट्रोल ऑल्सो कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द नेटवर्क लेयर, कर सकते हैं,
The designer of the network layer in the internet ignored this issue. छोड़ो. One reason for this decision is that the fact that the packet in the network layer may be fragmented at each router, which makes error checking at this layer inefficient. तो एक यहाँ पर एक थोड़ा सा इशू ये है. देखो, ये एरर एरर यहाँ पर आप चाहे तो सीआरसी लगा सकते हैं, ठीक है. आप यहाँ चाहे तो कुछ और हैमिंग कोड वगैरह कुछ और लगा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? Also can be implemented in the network layer. Okay, error control can also be implemented in the network layer. But यहाँ पर एक issue है, छोटा सा issue. Okay, यहाँ पर क्योंकि हम लोग ने error detection, error correction वाला जो part था वो पिछले चैप्टर में की, इसके लिए यहाँ पर उसको खाली शॉर्ट में आपको बता दिया है. Okay, कुछ डीप में लेके जाएगा नहीं, बिकॉज क्या होगा, वही सीआरसी, वही हैमिंग कोड को यहाँ पर अप्लाई करो, पैरिटी चेक अप्लाई करो, तो वही कुछ ना कुछ मैकेनिज्म यू कैन अप्लाई एट दिस पर्टिकुलर नेटवर्क लेयर इन ऑर्डर टू फाइंड द एरर. ठीक है, सो वाला पार्ट तो हो गया डिस्कस. एरर कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट दिस लेयर, बट यहाँ पर एक इशू ये है कि मैंने आपको बताया था कि इफ योर डेटा इज क्वाइट बिग और क्वाइट लॉन्ग, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू फ्रैगमेंट द डेटा. ओके, इफ यू आर गोइंग टू फ्रैगमेंट द डेटा, देन यहाँ पर थोड़ा सा एरर चेकिंग थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है. फिर भी पॉसिबल है, कोई ऐसा वो नहीं है. सो एरर पैकेट इन द नेटवर्क लेयर मे बी फ्रैगमेंटेड एट ईच राउटर, विच मेक एरर चेकिंग एट दिस लेयर इनएफिशिएंट. तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, लेकिन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ना नहीं बोला है कि नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं. तो मैंने बताया नहीं की. ओके, देन वी हैव फ्लो कंट्रोल. आपको पता है फ्लो कंट्रोल क्या है? फ्लो कंट्रोल, maintaining the flow of the data from source to the destination. Maintaining the flow of data from source to the destination, so that the required number of packet which is required by the receiver will be generated by the sender. आपके रिसीवर एक सेकेंड में जितने पैकेट को डाइजेस्ट कर सकता है, उतने ही पैकेट आपका सेंडर एक सेकेंड में भेजेगा. मतलब एग्जाम्पल, if your receiver can receive 5 packets per second, okay, then your sender will send 5 packets per second only. It is not going to send 8 packets per second. Otherwise what will happen? The remaining 2 or 3 packets will get lost. Okay, and in result we need to resend all those packets whatever is lost. Okay, तो हमको करना नहीं है, वो नहीं करना है. इसके लिए we have हम लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में किया है, म्यूचुअल एडजस्टमेंट किया है कि भाई देख मैं 5 भेजूंगा तो 5 रिसीव कर. ओके, एंड देयर शुड नॉट बी अ सिचुएशन लाइक योर रिसीवर कैन हैंडल 15 पैकेट्स पर सेकेंड. ओके, चलो अच्छा एंड है उसका, so it can accept 15 packets per second, but your sender is sending only 5 packets per second. तो यहाँ पर आपका जो रिसीवर का जो टैलेंट है तो वो वेस्ट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर मतलब एक आइडियल कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी अ सिंक बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इन ऑर्डर टू हैव. अच्छा, उसके लिए हम लोगों ने फ्लो कंट्रोल के लिए क्या देखे थे? फ्लो कंट्रोल के लिए हम लोगों ने ये देखा था, योर रिसीवर इज गोइंग टू सेंड द फीडबैक. ओके, तो नीचे से मतलब एक फीडबैक भेजेगा, एक अलग से पैकेट भेज के एक फीडबैक देगा, and that feedback will contain the information which is required by that is the number of packet which is required by the receiver. तो वो जो इन्फॉर्मेशन भेजेगा उसके अंदर क्या रहेगा कि देख भाई सेंडर, मैं एक सेकंड में 5 पैकेट रिसीव कर सकता हूँ, तो मुझे 5 ही भेज. 5 के ऊपर भेजेगा तो जबरदस्ती का पैकेट वेस्ट हो जाएंगे. इसके लिए अपनों को पैकेट वेस्ट करना नहीं है, तो इसके लिए 5 कर दें. तो ये कैसा फीडबैक मैसेज होता है. ओके, इन केस अगर समटाइम अगर आपका सेंडर ज़्यादा भेज दे तो उस केस में आपका रिसीवर एक फीडबैक दे सकता है. ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल को मेंटेन करना आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है. if you do not maintain the flow control, then what will happen? There will be the packet loss, and in that result what will be there? The propagation delay बढ़ेगा, और जब propagation delay बढ़ेगा तो आपके डेटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा. हमको करना नहीं. ठीक है, तो flow control regulates the amount of data a source can send without overwhelming the receiver. रिसीवर को ओवरलोड किए बिना आपका सेंडर कितने पैकेट सेंड कर सकता है, तो वो फ्लो कंट्रोल में हम लोग डिसाइड करेंगे. If the upper layer at the source computer produce data faster than the upper layer at the destination computer can consume it, the receiver will be overwhelmed with the data. तो वही आपको रीजन मैंने एग्जांपल दिया हूँ
To control the flow of the data, the receiver needs to send some feedback. फीडबैक भी आपको मैंने बता दिया हूँ. तो some feedback to the sender to inform the latter that it is overwhelmed with the data. ठीक है, तो वही चीज़ आपको बता चुका हूँ मैं, रिवर्स को मैंने रीड कर रहा था आपके लिए. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कंजेशन कंट्रोल. आई होप 10:45 हो गया है. कंजेशन कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ सर्विस, सिक्योरिटी. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द कंजेशन कंट्रोल आल्सो. चलो इसको इसको कवर कर लेते हैं क्योंकि ये एक साथ में पूरे सर्विसेज हैं. ठीक है, आई वाज टॉकिंग अबाउट द कंजेशन कंट्रोल दैट इफ एट एनी पॉइंट इन द मीडियम, at any point at any location, if the number of packets are more, okay, if the number of packets are more, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपके आपकी क्लास है, आपकी टी की क्लास थी, आपकी एसी की क्लास थी. एसी क्लास के अंदर जो डोर था, तो डोर की कैपेसिटी कितनी थी? इन डोर में से एट ए टाइम आई थिंक 3 स्टूडेंट्स कैन कम आउट ऑफ द क्लासरूम. ठीक है, सो इट वाज द कैपेसिटी. अगर 4 लोग निकलने की कोशिश करेंगे या पूरी की पूरी क्लास एक साथ में निकलने की अगर कोशिश करेंगे, तो बोलो क्या होगा? क्या होगा? आपके क्लास के डोर पर कंजेशन हो जाएगा. और कंजेशन होने में अगर मुझे क्लास के बाहर निकलना है या मुझे क्लास के अंदर आना है, तो मैं आ सकता हूँ? नहीं आ सकता हूँ. ओके, सो दैट इज द सिचुएशन विच इज क्रिएटेड एट इन द नेटवर्क. ओके, एट एनी पॉइंट. ओके, पूरे नेटवर्क में, वायर में कहीं पर भी सिचुएशन आ सकती है. ओके, so in order to avoid the situation, in order to avoid the situation, we have some we have 2 strategies. One is the open loop congestion control and second is the closed loop congestion control. Okay, so congestion control basically इसको समझ लो. तो एग्जांपल आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर लेंगे, then you will easily understand the congestion control which is happening in the network also. So we have another issue in the network protocol is the congestion control, and in this the situation in which too many datagrams, so datagrams मतलब वही पैकेट आपकी, ठीक है. So in which too many datagrams are present in an area of the internet, या फिर आपके लिंक में, आपके केबल में किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा क्या हो गए, बहुत ज़्यादा डेटाग्राम, बहुत ज़्यादा पैकेट एक जगह जमा हो गए. जब एक जगह जमा हो जाएंगे तो पीछे से कोई ना किसी पैकेट को आने देंगे ना किसी पैकेट को जाने देंगे. ठीक है, तो एक जगह जमा हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया. So congestion may occur if the number of datagrams sent by the source computer is beyond the capacity of the network or router. तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है. In this situation, some routers may drop some of the datagram. तो कुछ कुछ राउटर कहीं कहीं पर पैकेट्स को ड्रॉप भी कर देते हैं. आगे हमारे पास में मैकेनिज्म है उसकी. So due to the error control mechanism at the upper layer, the sender may assign duplicates of the lost packet. अच्छा, इसके ऊपर बोलते हैं ना हम लोग नैले पे दहला. तो मतलब वो क्या होता है कि आपके तो पैकेट जमा हो रही है ना, कि ट्रैफिक तो है ही है, साथ साथ में कोई एक्सीडेंट हो जाए, साथ साथ में कोई मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ जो कि नहीं होना चाहिए, तो कुछ ऐसी अगर सिचुएशन हो जाए तो फिर और ऊपर से फिर ट्रैफिक और जम जाती है. तो वही सिचुएशन हमारी होती है. If the congestion continues, sometimes the situation may reach a point where the system collapses and no datagrams are deleted. तो कुछ सिचुएशन ऐसी होता है आपका पूरा पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज एक एक्सीडेंट हो गया और उसके अंदर वो कुछ पूरा मतलब कि आपका ट्रक आड़ा पड़ा है और गाड़ी पड़ी है तो आगे जा ही नहीं सकते, ब्लॉक हो, तो पूरा पूरा का रोड आपका ब्लॉक हो जाता है. तो ये कुछ जो सिचुएशन होती है हमारी कंजेशन कंट्रोल वाली होती है. और इसको करने के लिए पहले तो हमारे पास में 2 स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया, अभी जस्ट बताया कि वी हैव 2 स्ट्रेटजीज फॉर दैट. वन इज ओपन, सेकंड इज क्लोज लूप. ओपन लूप, क्लोज लूप. ओपन लूप आपका इसके लिए है कि वी हैव लॉट ऑफ पॉलिसीज. ओके, जैसे होता है ना, व्हेन यू एंटर ऑन टू द हाईवे, आप कोई नेशनल हाईवे पे या कोई ऐसे पर गए, तो वी हैव लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हाईवे कि भाई देखो इतनी इतनी स्पीड से चलो, और LNB यहाँ से, HMB यहाँ से. ठीक है, आपके जो लाइट मोटर व्हीकल है, हैवी मोटर व्हीकल है, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से बहुत सारी लेन्स होती है, तो पूरी इंस्ट्रक्शन हमको दी रहती है. फिर आगे स्पीड ब्रेकर के पास, स्पीड ब्रेकर तो होते नहीं है, कहीं कहीं होती है ना, कहीं कहीं पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है. ठीक है, कि बी अटेंटिव, आगे आपका मतलब स्पीड ब्रेकर है या फिर आगे ऐसा है, आगे टर्न है. तो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू यू सो दैट यू विल बी अलर्ट, ओके, रिगार्डिंग द सिचुएशन व्हिच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो ये सारी सिचुएशन होती है. तो वैसे ही ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल में बहुत सारी पॉलिसीज होती है. देखो भाई, एक एक करके जाओ और गलती मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो. तो ऐसे वी हैव लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वी हैव लॉट ऑफ पॉलिसीज गिवन इन द ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल, कि जिसकी वजह से कंजेशन नहीं होगा.
ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल में सारी की सारी पॉलिसीज आती है। फिर भी आपने हाईवे पे एंटर किया, सब इंस्ट्रक्शन पर, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गया, आप क्या करेंगे? आप क्या करना है आपको? आपको उसके मतलब कि मतलब उसका वो करना है इसको, मतलब क्या बोलेंगे इसको, अ, अच्छा वो मेरे दिमाग से निकल रहे हैं। तो आपको उसका रिजोल्यूशन करना है। रिजोल्यूशन कैसे होगा? यू विल कॉल टू द इमरजेंसी नंबर, ठीक है? आप किसी गाड़ी वाले को रुकाएंगे, एक्सीडेंट हो गया आपका, आप किसी गाड़ी वाले को रुकाएंगे, किसी और का हुआ तो आप किसी गाड़ी वाले को रुका के उसकी हेल्प लेके फिर उनको हॉस्पिटल मतलब लेकर जाना है, और गाड़ी साइड में लगाना है सो दैट कि वहाँ पे और कंजेशन ना हो। तो ये क्या है? ये एक्सीडेंट होने के बाद की सारी सिचुएशन है। तो वैसे ही हमारे क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल के अंदर कब जब कंजेशन हो जाए, अब इस कंजेशन को रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक है? This congestion, how you can resolve this congestion? So we have three mechanisms, okay? So from those three mechanisms we can resolve the congestion. So we have open loop congestion control, we have number of policies, so that you will avoid the congestion, आपका congestion नहीं होगा। फिर भी हो गया तो क्या करेंगे? We have closed loop congestion control, we have mechanism, we have three mechanism from which we can come out of the situation like congestion. Okay, so this is all about the condition. We'll stop over here because this is I think 10:51 and we have remaining two, that is quality of service. Nothing, ये तो quality of service आपको पता है, बस ये बोलेंगे भाई quality of service को आपका ऑडियो हो, वीडियो हो, कुछ भी हो तो उसमें आपको quality of service प्रोवाइड करना है। देन लास्ट में सिक्योरिटी है आपका, मतलब द सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय द मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल का नाम है IPsec। यू कैन सी यहाँ पर देखो IPsec लिखा हुआ है। सो IP सिक्योरिटी एक मॉड्यूल है विच वाज एडेड इन द IP मतलब आपका जो यूज करते हैं, तो उसके अंदर एक IPsec नाम का मॉड्यूल है जिसकी वजह से आपके डेटा को सिक्योरिटी दी जाती है। तो ये दो पॉइंट और हैं। तो वी हैव बेसिकली ऑल दिस services which is provided by the network layer. Okay, so I think this is enough today. Services provided by the network layer. From the next session, we'll start with the next one, that is network layer performance. How you can calculate the network layer ka performance. So with the help of these two, these one, these two, these three, and this four. So from these four parameter, from this four thing, we can easily calculate, or we can easily come to know, or we can easily measure the performance of the network layer. We'll start tomorrow. Okay, thank you so much.